everyone. I welcome you all to this course on English grammar for competitive exams. I am Divyajot Kaur, research scholar, Malviya National Institute of Technology, Jaipur. अक्सर इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर्म करते हुए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका यूज़ कहाँ करें, एट का, फॉर, ऑन, अबव, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट ये सब क्या है? ये सब कुछ prepositions है. Although the use of prepositions is a bit confusing, in today's lecture we will try to simplify it and discuss prepositions in detail. Beginning with the meaning of prepositions. Preposition connects noun, pronoun or phrases to other words in a sentence. तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो preposition क्या है? ये noun, pronoun या phrases का दूसरे वर्ड से रिलेशनशिप डेवलप करता है और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है. Let's understand with the help of these examples. The dog is sitting dash the chair. If I say this, does this make any sense? No, because I have not defined the relationship between the dog and the chair. The dog is sitting the chair. It does not make any sense. It has no meaning. But if I say the dog is sitting on the chair, makes sense? Because of the use of the preposition on. The sentence has become meaningful because now I can understand the relationship between the dog and the chair. I hope the meaning of prepositions is clear. Now there are different types of prepositions based on the situations. If you want to convey when an event occurred, we use the prepositions of time. To convey where the event happened, we use the prepositions of place. To convey in which direction the event is happening, we use the prepositions of direction or movement. हम गति बताने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. There are two forms of prepositions. They can be one-word prepositions like on, at, in, for, under, above, etc. Or they can be complex prepositions. More than one word भी हो सकता है, जैसे far away, away from, in front of, etc. There are more than 100 prepositions in English, but in today's lecture we are going to discuss the most important and most frequently used prepositions along with images for better understanding. First, let's discuss about prepositions of place. On and above. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि on कब यूज करना है, above कब यूज करना है. On is used when the object or thing touches the surface directly. For example, the books are kept on the table. As you can see in the image, जो books हैं वो टेबल के surface पर टच हो रखी हैं. वो टेबल की सतह को टच कर रही हैं, इसीलिए हम on का यूज करते हैं. वो surface कुछ भी हो सकता है, be it the table, the ground, the wall, the ceiling, anything. But अगर कोई भी object हम बात कर रहे हैं वो surface को यानी सतह को टच करता है तो हम on का यूज करेंगे. For example, we sat on the ground. I like the painting on the wall क्योंकि वो wall को टच करते हुए इसके surface पर mounted है. And vice versa for above. It is used when the object does not touch the surface directly. For example, the painting is mounted above the shelf. Now if you look at the image, there is a shelf and there is a painting above it, but it does not directly touch the shelf. वो shelf की surface को touch करके नहीं placed है. वो wall की surface को touch करती है but shelf को नहीं. So you have to be clear about what relationship you want to develop. अगर आप wall और painting के relationship बताते हैं, वो touch कर रहे हैं, in on का use होगा. But अगर आप shelf और पेंटिंग का रिलेशनशिप बता रहे हैं वो टच नहीं हो रहे हैं. इट इज अबव द शेल्फ बट विदाउट टचिंग इट, सो वी यूज अबव. Birds are flying above the clouds.
बर्ड्स क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं बट दे आर नॉट डायरेक्टली टचिंग द क्लाउड्स, वो इसकी सतह पर नहीं है। द हेलीकॉप्टर वाज hovering above द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के ऊपर है बट बिल्डिंग को डायरेक्टली टच नहीं कर रहा है, किसी सतह को, किसी सरफेस को टच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, बिहाइंड मतलब पीछे। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री एंड द डॉग इज बिहाइंड द ट्री, एज सिंपल एज दैट। In and at. You need to understand this clearly. In is used for enclosed space. When we talk of enclosed, हम किसी enclosed बंद जगह की, जब बंद space की बात करें, जैसे कि I am in the room. As you all know, you can see in the image, room एक enclosed space ही होता है, it is enclosed. तो हम in का यूज करते हैं. She gets in the car, car एक enclosed space है. He stayed in a hotel, enclosed space है. तो यहाँ in है. एंड एट का यूज कब होता है, जब हम सिर्फ एक जनरल लोकेशन बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, बट घर पर कहाँ? घर पर बहुत कुछ होता है. मैं टेरेस पर हो सकती हूँ, मैं रूम में हो सकती हूँ, मैं किचन में हो सकती हूँ, मैं गार्डन में हो सकती हूँ. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई जनरल लोकेशन. बट इतनी बड़ी स्पेस में घर, होम के अंदर मैं कहाँ हूँ? आई एम नॉट स्पेसिफाइंग माई लोकेशन. So I'm using at. I met Seema at a party. She's waiting at the bus stop. ये general locations हैं. I'm not specifying. मैं enclosed space की बात नहीं कर रही हूँ. These are open spaces. So we use at. Between and among. The difference basically is when we talk of two things. When we talk of two things, we use between. The green ball is kept between the yellow and blue balls. We are talking of two balls, between. When we talk of more than two things, we use among. The green ball is kept among other balls. So there are more than two balls we are talking about. For two we use between. For more than two we use among. Under and below. अब इन दोनों का मतलब है नीचे. Under means नीचे, below का भी अर्थ है नीचे, पर इनकी यूज में डिफरेंस है. The ball is under the table. बॉल टेबल के नीचे है और टेबल उस बॉल को पूरी तरह से कवर कर रहा है. ऑलराइट. सो अंडर का यूज कब होता है, जब वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ऊपर से कवर कर रहा है, तो वी यूज अंडर. बट बिलो का यूज हम कब करते हैं, जब वो कवर नहीं कर रहा है बट वी ओनली वांट टू टेल यू द लेवल. बॉल नीचे पड़ी है, टेबल ऊंचा है, वी नो द लेवल. बॉल इज बिलो, टेबल इज अबव द बॉल. तो हम सिर्फ लेवल दर्शाने के लिए बिलो का यूज करते हैं. बट ये कवर्ड नहीं है, कहीं से भी ये बॉल टेबल से कवर्ड नहीं है. अगर कवर्ड होती तो हम अंडर का यूज करते. तो दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस विच वी नीड टू कीप इन माइंड. नियर एंड फार फ्रॉम. पास या दूर. The ball is near the table, the ball is far from the table, as you can see in the image. As simple as that. Now moving on to prepositions of movement or direction. ये वो prepositions हैं जो गति की बात कर रहे हैं. अभी तक हम place की बात कर रहे थे, यानी कि वो सब कुछ stationary था. बट अभी हम जो बात कर रहे हैं ये movement है, इनमें गति है. ये stagnant या stationary नहीं है. First is along and around. अब देखिए, द बॉय इज वॉकिंग अलोंग द रोड. अलोंग मतलब सीधे सीधे जाना, अराउंड मतलब घूम कर जाना. द बॉय इज वॉकिंग अलोंग द रोड. हम रोड पर सीधे सीधे रोड के ऊपर चलते हैं. सिंपल. तो वी यूज अलोंग. आई एम वॉकिंग अलोंग द फील्ड, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड. बट अराउंड होता है घूमकर. वी वॉक्ड अराउंड द लेक. देखिए, हम लेक में घूम कर जाएंगे. हम लेक के ऊपर तो चलकर जा नहीं सकते सीधे सीधे. ऑब्वियसली हम लेक के
किनारे किनारे का रास्ता पकड़ेंगे जो घुमा हुआ होगा और किनारे का रास्ता पकड़ कर हम वो रास्ता पार करेंगे। तो आई कैनॉट से दैट आई वॉकड अलोंग द रिवर और अलोंग द लेक, क्योंकि मैं उसके ऊपर पैरेलली नहीं चल रही हूँ। अगर आप मान लीजिए हम चल रहे हैं और सड़क पे चलते चलते रास्ते में कोई बड़ी सारी ईंट या रॉक आ जाती है, तो व्हाट विल यू डू? आप उसके ऊपर से तो चढ़कर जाएंगे नहीं, आप उसके साइड से घूम कर निकल जाएंगे। दिस इज द सेम केस व्हेन वी टॉक ऑफ द लेक। तो सीधे सीधे चलने की जब बात होती है वी यूज अलोंग, और घूम घूम कर जाने की जब बात होती है वी यूज अराउंड। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, एंड ही इज गोइंग डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। सिंपल एज। ओवर एंड अंडर। अब ओवर की बात हम तब करते हैं जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ उसे लांग कर जा रहे हो ऊपर से, तब हम ओवर का यूज करेंगे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जंप ओवर द फेंस, वो फेंस को लांगते हुए फेंस की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। किसी चीज को ऊपर से लांगने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। अंडर का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द गर्ल इज सिटिंग अंडर द टेबल, शी इज कवर्ड, टेबल के अंडर कवर्ड है। अंडर का यूज है, बिलो का यूज नहीं है, वी हैव डिस्कस्ड इट प्रीवियसली। अक्रॉस एंड थ्रू, अब ये ध्यान से समझिए। वी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, देखिए अक्रॉस और थ्रू का मीनिंग होता है एक पार से दूसरे पार जाना, ठीक है। वी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, हम फील्ड के एक तरफ से दूसरी तरफ गए, ठीक है। आई मैनेज टू स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर के एक तरफ से स्विम करती हुई दूसरी पार गई, एक पार से दूसरे पार, ठीक है। अब ये क्या है, फील्ड हो गए, रिवर हो गए, ये ओपन स्पेसेस है, तो हम अक्रॉस की बात कर रहे हैं। बट थ्रू का यूज हम करते हैं एनक्लोज्ड स्पेस के लिए। द बर्ड फ्लू थ्रू द विंडो, नाउ विंडो इज एन enclosed space, this is not open like the field or the river. जॉन वेंट थ्रू द टनल, तो टनल भी एक enclosed स्पेस है, उसके बीच में से हम एक पार से दूसरे पार हो रहे हैं। तो ये होता है डिफरेंस। अक्रॉस हम तब यूज करते हैं जब ओपन स्पेस की बात हो, थ्रू हम यूज करते हैं जब हम किसी enclosed स्पेस के बीच में से एक पार से दूसरी पार जाते हैं। इट्स somewhat similar to the use of in and at. Towards, away from, boy ran towards me, यानी मेरी ओर आ रहा है, एंड अवे फ्रॉम, द बॉय रन अवे फ्रॉम मी, यानी मुझसे दूर जा रहा है। तो इफ कुछ चीज आपकी तरफ आ रही है, आपकी ओर आ रही थी, यूज टूवर्ड्स, आपसे दूर जा रही है तो यू से अवे फ्रॉम। ऑन टू एंड ऑफ, अब देखिए इसमें समझिए कि द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल क्यों नहीं कहा हमने, हम ऑन द टेबल भी तो कह सकते थे, टेबल के ऊपर ही जाने की बात हो रही है। बट नो, we are not using on here. On हो जाता है preposition of place, but here we are using preposition of direction or movement, क्योंकि हम गति की बात कर रहे हैं। जो कैट है वो एक गति से नीचे से टेबल के ऊपर जा रही है, देयर इज अ मूवमेंट इन द सेंटेंस। वो स्टेशनरी नहीं है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो गति से नीचे से ऊपर जा रही है। देयर इज अ मूवमेंट, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज ऑन हियर, वी यूज ऑन टू। जब नीचे से ऊपर जा रही है तो we use onto, and here the cat jumped off the table. अब वो फिर गति से टेबल के ऊपर से नीचे जाती हुई देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी गति है, मूवमेंट है, so we used off, onto and off. Here's a lecture recap. In today's lecture we learned about what are prepositions and their uses, the different types of prepositions, prepositions of place and prepositions of movement or direction. We discussed all these types with in detail examples.
So, in the next lecture, we are going to discuss in detail about the prepositions of time. This is all for today's lecture. Thank you, and I wish you all happy learning.